welcome you all again in today's session of transdermal drug delivery system. So under the heading of transdermal drug delivery system, we are discuss about the introduction of transdermal drug delivery system, definitions, permeation through the skin, factor affecting permeation, permeation enhancers, basic component of the transdermal drug delivery system, and various formulation approaches to develop the transdermal drug delivery system. Now move towards the learning objective of this session. After attending this session, the learner will be able to define the terminology related to transdermal drug delivery system. You will understand the permeation through the skin. We will discuss the various factors affecting permeation. You will understand the role of permeation enhancers, and you will learn basic components of transdermal drug delivery system, and you will also learn to formulation approaches to develop the transdermal drug delivery system. Now move towards the definition of transdermal drug delivery system. Transdermal therapeutic are defined as self-contained discrete dosage form which when applied to the intact skin deliver the drug through the skin at controlled rate to the systemic circulation. फिर से देखेंगे एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है ना. ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक्स आर डिफाइंड एज सेल्फ कंटेंड डिस्क्रीट सेपरेट डोसेज फॉर्म है, सेल्फ कंटेंड है, फॉर्म फ्रॉम विच व्हेन अप्लाइड टू द इंटैक्ट स्किन, और जब इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं इट डिलीवर द ड्रग्स, ये ड्रग को डिलीवर करता है थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू एट कंट्रोल्ड रेट पर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को डिलीवर करता है. तो स्किन पर अप्लाई करते हैं जिससे स्किन के थ्रू ड्रग को कंट्रोल रेट पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करता है. इट इज द सेल्फ कंटेंड डिस्क्रीट डोसेज फॉर्म विच व्हेन अप्लाइड टू द इंटैक्ट स्किन इट डिलीवर द ड्रग थ्रू द स्किन एट कंट्रोल रेट टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. और वी कैन define in other words the transdermal drug delivery system are the system that utilize skin as a site of continuous drug administration into the systemic circulation. ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम अदर वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम स्किन को एज ए साइट ऑफ एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं और जहां से ड्रग का कंटिन्यूस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में. Now move towards the various advantages of the transdermal drug delivery system. First advantage is it avoid first pass hepatic metabolism. It avoid first pass hepatic metabolism. Second, it maintain constant plasma drug concentration level for longer period of time. It maintain the constant plasma drug concentration levels for longer period of time, है ना. It decrease the dose of administration. Fourth, it decrease unwanted side effects. It decrease gastrointestinal side effects. It is easy to discontinue or termination in case of toxic effects. It increase the patient compliance. Great advantage for the patient who are unconscious. फिर से एक बार देखेंगे. फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है. कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल हमें लंबे समय तक मेंटेन रहता है. डोज की साइज को डिक्रीज कर सकते हैं. इट डिक्रीज अनवांटेड साइड इफेक्ट, जो अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी
डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इजीली इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या किसी भी समय हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं बाय रिमूविंग द पैच। पैच को आप रिमूव करेंगे तो किसी भी समय इसको हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होती है और ग्रेट एडवांटेजेस फॉर द पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस हैं उनके लिए काफ़ी एडवांटेजेस इसके द्वारा मिल जाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज it provide an ability to modify the properties of biological barriers to improve absorption। बायोलॉजिकल बैरियर्स की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ एप्लीकेशन इन कंपैरिजन टू द बकल एंड नेजल कैविटी। रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ एप्लीकेशन इन कंपैरिजन टू बकल एंड नेजल कैविटी। नेजल और बकल कैविटी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा एरिया हमें एप्लीकेशंस के लिए मिलता है। It provide utilization of drug with short biological half lives, narrow therapeutic window। शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ वाली ड्रग हैं या जिनकी नैरो थेराप्यूटिक विंडो है उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट अवॉइड ड्रग फ्लक्चुएशन ब्लड लेवल। ड्रग फ्लक्चुएशन ब्लड लेवल को हम अवॉइड कर सकते हैं। इट रिड्यूस द इंट्रा पेशेंट वेरिएशन। इंट्रा एंड इंट्रा पेशेंट वेरिएशन को रिड्यूस किया जा सकता है। प्रोवाइड सुइटेबिलिटी फॉर द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है इसमें, पैच हम स्वयं लगा सकते हैं इसलिए सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। दे आर नॉन इन्वेसिव, अवॉइडिंग द इनकन्वीनियंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी। नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिससे जो पेरेंटल थेरेपी के द्वारा इनकन्वीनियंस होता है पेशेंट को, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ द नॉन इन्वेसिव टेक्निक। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ मूव टुवर्ड्स द disadvantages of TDS. First one is the drug must have some desirable physicochemical properties to penetrate through the stratum corneum. Some desirable properties होना चाहिए ड्रग की जिससे वह स्ट्रेटम कॉर्नियम को पेनिट्रेट कर सके, वहां से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो सके। ड्रग फॉर डेली डोज लेस देन 5 mg पर डे आर प्रेफर्ड। डेली डोज 5 mg पर डे प्रेफर करते हैं। इफ ड्रग डोज इज मोर देन 10 to 25 mg पर डे द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी विल बी डिफिकल्ट। अगर डोज ज़्यादा है तो TDS का फॉर्मुलेशन और TDS के द्वारा ड्रग की डिलीवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो डेली डोज कम होना चाहिए। लोकल इरिटेशन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन may be caused by drug, adhesive and other excipient in the patch। लोकल इरिटेशन हो सकता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कि ड्रग के द्वारा, एडहेसिव के द्वारा, एक्सिपिएंट्स जो उसमें पैच में ऐड किए गए हैं उनके द्वारा हो सकता है। क्लिनिकल नीड मस्ट बी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड। क्लिनिकल नीड क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना पड़ता है। जो भी क्लिनिकल नीड्स होती हैं उनको क्लियरली एस्टेब्लिश करना पड़ता है। द बैरियर फंक्शन ऑफ स्किन चेंजेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड विद द एज। द बैरियर फंक्शन ऑफ स्किन चेंज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड विद द एज। तो बैरियर फंक्शन होता है स्किन का वो साइड, वन साइड टू अनदर साइड, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और एज के साथ में चेंज होता है।
है ना। 6. द पुअर स्किन परमिबिलिटी लिमिट द नंबर ऑफ ड्रग दैट कैन बी डिलीवर्ड इन दिस रूट। पुअर स्किन परमिबिलिटी के कारण नंबर ऑफ ड्रग ही है, लिमिटेड ड्रग ही है जिनको हम इस रूट के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। TDS कैन नॉट बी डिलीवर आयोनिक ड्रग, आयोनिक ड्रग को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आयोनिक ड्रग को डिलीवर करना। TDS कैन नॉट अचीव हाई ड्रग लेवल इन द ब्लड एंड प्लाज्मा, हाई ड्रग लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं ड्रग की TDS के द्वारा। ड्रग्स ऑफ लार्ज मोलिकुलर साइज कैन नॉट बी फार्मुलेटेड एज TDS, ऐसी ड्रग जिनकी मोलिकुलर साइज ज़्यादा है उनको TDS के द्वारा फार्मुलेट नहीं कर सकते हैं। TDS कैन नॉट डिलीवर द ड्रग इन पल्सेटाइल फैशन, TDS के द्वारा ड्रग को पल्सेटाइल फैशन में डिलीवर नहीं कर सकते हैं, रुक रुक कर। अगर हम चाहें कि रुक रुक कर डिलीवर करना है तो पल्सेटाइल फैशन में सिंपल जो TDS पैच होता है इसके द्वारा डिलीवर नहीं कर सकते। नाउ मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। The skin is very effective as a selective penetrant barrier. Effective skin is a very effective as a selective penetration barrier. The epidermis provide the major control element for the drug penetration. एपिडर्मस के द्वारा ये सेलेक्टिव है कि कुछ ड्रग इसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पेनिट्रेशन हो सकता है, कुछ का नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज द सेलेक्टिव पेनिट्रेशन बैरियर। एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मस, जो स्किन है उसमें मेन 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। एपिडर्मस वी कैन सी इन द डायग्राम, एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस। यहाँ पे स्वेट और भी देख सकते हैं, हेयर शाफ्ट्स है, स्वीट ग्लैंड्स हैं, सेबियस ग्लैंड्स हैं, नर्व्स है, एडिपोज टिश्यू और हेयर फॉलिकल्स, वेन एंड आर्टरी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। सो एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लेयर, एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम स्पिनोसम and basal. Last layer is also the basal, is not mentioned here. And second major layer is the dermis and third is the subcutaneous. So these are the skin layers. We can also go through this detailed diagram of skin structure. Here is the stratum corneum, pigment layer, stratum germinatum, nativum, stratum spinosum, stratum basal, and hair follicles and nerve fibers. These are the sweat glands, है ना, epidermis, dermis and subcutaneous, vein, arteries, all these things, है ना, in the structure of skin. Now, non-viable epidermis, that is stratum corneum, outermost layer of the skin and physical barrier to the most of the substance. It is the non-viable epidermis, जिसको हम stratum corneum कहते हैं. It is the outermost layer of the skin and physical barrier to most of the substance. It is 10 to 20 cell layer thick, 10 to 20 cell layer thick with lipids 5 to 15%, protein 70 to 85%, mainly keratin. तो नॉन वायबल एपिडर्मस, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्डियम कहते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की और फिजिकल बैरियर होता है कई सारी सब्सटेंस के लिए, ड्रग्स के लिए। इसमें 10 to 20 सेल लेयर्स होती हैं और उनका थिकनेस होती है। एंड इसमें लिपिड्स
5 to 15% और प्रोटीन 70 to 85% मेनली कैरेटिन होता है। सेकेंड इसमें वायबल एपिडर्मस है। दिस लेयर इज द बिटवीन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड द डर्मिस। स्ट्रेटम कॉर्नियम और डर्मिस के बीच का जो है पार्ट वो वायबल एपिडर्मस कहलाता है। इसमें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्पिनोसम और बेसल, these 4 layers consist of under the viable epidermis with the 50 to 100 माइक्रोमीटर थिकनेस। इसकी जो थिकनेस है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर की है एंड 90% वाटर कंटेंट, और इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है वायबल एपिडर्मस में। तो नॉन वायबल एपिडर्मस स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और जिसमें फिजिकल बैरियर है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के लिए। इसमें 10 to 20 सेल लेयर थिकनेस है और लिपिड्स है 5 to 15%, प्रोटीन है 70 to 85%, मेनली कैरेटिन। जो सेकंड है इसमें वायबल एपिडर्मिस है और स्ट्रेटम कॉर्नियम और डर्मिस के बीच की जो लेयर्स हैं वो वायबल एपिडर्मिस कहलाती हैं। इसमें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्पिनोसम और बेसेल्स, और इसमें 50 to 100 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है और 90% वाटर कंटेंट इसमें होता है। वायबल डर्मिस कॉर्नियम थिकनेस इज 2000 to 3000 माइक्रोमीटर, कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू composed of fibrous protein, collagens, elastins and reticulum. So next layer is the viable dermis corneum जिसको कहते हैं, जिसकी thickness 2000 से 3000 माइक्रोमीटर के बीच में है और it consists of matrix of loose connective tissues composed of fibrous protein, collagens, elastin and reticulum. Fourth is the subcutaneous connective tissue जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। इट इज द लूज टेक्सचर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ फैट एंड इलास्टिक फाइबर्स। लूज टेक्सचर्स वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ फैट एंड इलास्टिक फाइबर्स। इट कंटेन ब्लड, लंप वेसल्स, बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स, सेक्रेटरी portion of sweat glands and cutaneous nerves। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फैट और इलास्टिक फाइबर्स हैं और इसमें इट कंटेन द ब्लड, लंप वेसल्स, बेस ऑफ हेयर फॉलिकल्स, सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड क्यूटेनियस नर्व्स। नाउ वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन अक्रॉस द स्किन। रूट ऑफ पेनिट्रेशन, रूट कौन कौन से रूट्स हैं जिसके थ्रू ड्रग पेनिट्रेट होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच सकती है स्किन के थ्रू, उन रूट को हम यहाँ पे देखेंगे। रूट ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन अक्रॉस द स्किन। 3 पोटेंशियल एंट्री मैक्रो रूट टू द वायबल टिश्यू। 3 रूट्स हैं जिनको मैक्रो रूट्स कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बाय द स्वीट डक्ट्स। स्वीट डक्ट्स इसमें डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, स्वीट डक्ट एक नंबर पर, स्वीट डक्ट्स। सेकेंड अक्रॉस कंटिन्यूअस स्ट्रेटम कॉर्नियम। अक्रॉस कंटिन्यूअस स्ट्रेटम कॉर्नियम जिसको हम डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग पेनिट्रेट होती है। यहाँ पे सेकंड नंबर पर डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे है ना, अक्रॉस द कंटिन्यूअस स्ट्रेटम कॉर्नियम डिफ्यूजन के थ्रू। थर्ड थ्रू द हेयर फॉलिकल्स विथ देयर एसोसिएटेड सेबेशियस ग्लैंड। थ्रू द हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स के थ्रू यहाँ पे, और जो उसके साथ में सेबेशियस ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं उनके थ्रू ड्रग का पेनिट्रेशन। तो ये दीज आर द 3 major roots, macro roots for the drug penetration, or we can say the drug get entry into the systemic circulation by through this 3 major roots. First one is the sweet ducts, second stratum corneum, third hair follicles।
इन 3 रूट्स के द्वारा ड्रग पेनिट्रेट होकर स्किन के थ्रू अक्रॉस द स्किन सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इन रूट्स को हम अदर नेम से फर्स्ट वन इज द क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द ट्रांससेलुलर परमिशन। ट्रांससेलुलर परमिशन थ्रू द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इस डायग्राम में देखेंगे ट्रांससेलुलर परमिशन, इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू जो परमिशन होता है वो ट्रांससेलुलर परमिशन कहलाता है। सेकंड, इंटरसेलुलर परमिशन, ये भी स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू होता है। तो ट्रांससेलुलर और इंटरसेलुलर ये आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू होता है दोनों। ये ट्रांससेलुलर परमिशन है और ये ट्रांससेलुलर और ये इंटरसेलुलर परमिशन के थ्रू ड्रग परमिशन होता है। थर्ड, इसमें जो मैकेनिज्म है दैट इज ट्रांसएपेंडेंजियल परमिशन। ट्रांसएपेंडेंजियल परमिशन बाय द हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस एंड स्वीट ग्लैंड। हेयर फॉलिकल्स के थ्रू, सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू या स्वीट ग्लैंड के थ्रू जो परमिशन होता है वो थर्ड टाइप का ट्रांसएपेंडेंजियल परमिशन कहलाता है। तो इसमें ट्रांससेलुलर डिस्कस किया, इंटरसेलुलर और ट्रांसएपेंडेंजियल परमिशन हमने देखा। इन अदर वर्ड्स, two main routes of skin permission can be defined: trans-epidermal route और trans-follicular routes. Trans-epidermal route और trans-follicular routes. First one is the trans-epidermal route. In the trans-epidermal transport, molecule across the intact horny layer, molecule across the intact horny layer. Two potential micro route of entry exist. First one is the transcellular और intracellular, second intercellular. तो ट्रांस एपिडर्मल को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द ट्रांससेलुलर और सेकेंड है इंटरसेलुलर। ये दोनों अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांस एपिडर्मल रूट के अंडर आ जाएगा। ट्रांससेलुलर और इंटरसेलुलर पोटेंशियल रूट है ना। सेकेंड, इसी को डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ट्रांस एपिडर्मल रूट्स क्या है? बोथ द पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस डिफ्यूज बाय द ट्रांससेलुलर एंड इंटरसेलुलर रूट बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म। दोनों पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस ट्रांससेलुलर और इंटरसेलुलर रूट के थ्रू डिफ्यूज हो सकते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। द पोलर मॉलिक्यूल्स मेनली डिफ्यूज थ्रू द पोलर पाथवे। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं मेनली पोलर पाथवे के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ बाउंड वाटर विद इन द हाइड्रेटेड स्ट्रेटम कॉर्नियम, whereas the non-polar molecule dissolve and diffuse through the non-aqueous lipid matrix of stratum corneum। तो दोनों स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू ही डिफ्यूज हो रहे हैं। पहला पोलर पाथवे था और दूसरा नॉन पोलर पाथवे था, है ना। तो पोलर पाथवे में कंसिस्ट ऑफ बाउंड वाटर विद इन द हाइड्रेटेड कॉर्नियम। हाइड्रेटेड कॉर्नियम में जो बाउंड वाटर है उसके थ्रू यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वह डिजॉल्व या डिफ्यूज थ्रू द नॉन एक्वस लिपिड मैट्रिक्स ऑफ। जो लिपिड पोर्शन है, लिपिड मैट्रिक्स है स्ट्रेटम कॉर्नियम का, ये वाटर पोर्शन था, ये लिपिड पोर्शन है। वाटर पोर्शन से पोलर मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाएंगे, और जो आपका लिपिड पोर्शन है, लिपिड मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम है, यहाँ से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे डिजॉल्व होंगे या डिफ्यूज हो जाएंगे नॉन एक्वस लिपिड मैट्रिक्स के थ्रू। Thus the principal pathway taken by the penetrant is decided mainly by the partition coefficient। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है ड्रग का, है ना। पार्टीशन कोएफिशिएंट
पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से पाथवे के थ्रू उसका डिफ्यूजन होगा, पोलर पाथवे के थ्रू होगा कि नॉन पोलर पाथवे के थ्रू होगा, लिपिड मैट्रिक्स के थ्रू होगा या बाउंड वाटर हाइड्रेटेड स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू होगा। किसके थ्रू ड्रग डिफ्यूज होगी वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, ये पार्टीशन कोफिशिएंट के थ्रू डिसाइड होता है। इसलिए प्री फार्मूलेशन स्टडी में हम पार्टीशन कोफिशिएंट और हाइड्रो और सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे पैरामीटर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि उसका परमिशन कैसे होगा। Thus the principal pathway taken by the penetrant is decided mainly by the partition coefficient log k। पार्टीशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि वह कौन से पाथवे के थ्रू वह उसका डिफ्यूजन होगा, लॉग के ऊपर। हाइड्रोफिलिक ड्रग पार्टीशन प्रेफरेंशियली इनटू द इंट्रासेलुलर डोमेन। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं वो मेनली किसके, इंट्रासेलुलर डोमेन के थ्रू हाइड्रोफिलिक ड्रग पार्टीशन होगा उनका, या परमिशन होगा या पेनिट्रेट होंगी। वेयरएज लिपोफिलिक परमिट, जिनका लिपोफिलिक कौन सी होंगी, जिनका ऑक्टेनॉल वाटर लॉग के इज द ग्रेटर देन द 2 से ज्यादा है। ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट जिनका 2 से ज्यादा है वो लिपोफिलिक ड्रग कहलाएंगी। तो वह किसके थ्रू होंगे, ट्रांसफर द स्ट्रेटम कॉर्नियम बाय द इंटरसेलुलर रूट, इंटरसेलुलर रूट के थ्रू ट्रांसफर होंगी या परमिशन होगा। तो लिपोफिलिक ड्रग हैं वो इंटरसेलुलर रूट के थ्रू उनका डिफ्यूजन होगा, पेनिट्रेशन होगा, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं उनका इंट्रासेलुलर डोमेन में उनका पार्टीशन हो पाएगा। मोस्ट ड्रग पास द स्ट्रेटम कॉर्नियम बाय द बोथ रूट। कई सारी ड्रग होती हैं जो दोनों रूट के थ्रू थोड़ा थोड़ा जिनका परमिशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उनका ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑप्टिमम होता है और दोनों रूट के थ्रू उनका परमिशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट रूट इज द ट्रांसफोलिकुलर रूट या ट्रांस एपेंडिजियल रूट, या जिनको हम संट पाथवे भी कहते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग बुक्स में दिया रहता है, ट्रांसफोलिकुलर रूट्स, ट्रांस एपेंडिजियल रूट, संट पाथवे। तो दिस रूट कंप्राइज ट्रांसपोर्ट बाय द स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स विथ देयर एसोसिएटेड सेबेशियस ग्लैंड्स। इस रूट के थ्रू इस रूट में हम स्वेट ग्लैंड्स का, हेयर फॉलिकल्स का और सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू ड्रग का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये रूट कहलाता है ट्रांसफोलिकुलर रूट्स, ये संट पाथवे। ऑल्दो these routes offer high permeability, they are considered to be the minor important because of their relatively small area, approximately 0.1% area of the total skin। इसमें परमिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। although these routes offer the high permeability, इसमें परमिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत कम है। They consider to be minor importance, इनका इम्पोर्टेंस बहुत कम है because of their relatively small area, क्योंकि इनका एरिया बहुत कम है, relatively small area, approximately 0.1 area of the total skin। टोटल स्किन का 0.1% एरिया ही ट्रांसफोलिकुलर रूट के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट हो पाता है। This route seems to be the most important for the iron and large polar molecules which hardly permeate through the stratum corneum। This route seems to be the most important for the ions and large polar molecules which hardly permeate through the stratum corneum। ऐसी ड्रग जो पोलर हैं या लार्ज पोलर मोलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, जो जिनका अदर रूट के थ्रू जो हमने पढ़े इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर रूट, उनके थ्रू जिनका परमिशन डिफिकल्ट होता है,
उनका इस रूट के थ्रू ट्रांसफोलिकुलर रूट के थ्रू उनका परमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो इट इज अबाउट द ट्रांसफोलिकुलर रूट। थैंक यू। We will discuss in the next lecture.